Hello friends, I Jay Nayak. Welcome you all to our official YouTube channel JRC Classes. Today we will start Standard 8 Mathematics, series of Standard 8 Mathematics, and we will start the first chapter today. Okay, the first chapter of Standard 8 is rational number. It is rational number. We will see today part 1, Introduction of Rational Numbers. So before watching this video, please take a pen and notebook so that you can write all the important points. Please pause the video and write all the important points and revise it well so that you can prepare well. So let's start our class. In standard 6 7 we already know a lot about numbers, so let's revise them and we will come to our point, rational numbers. So we are know about numbers. So numbers, basically we have started from natural numbers. Natural numbers, they are positive number. Natural numbers, they are positive numbers. Okay, the set of natural number is denoted by n. Set of natural number is denoted by n. Okay, which are the natural numbers? They are 1 2 3 4 up to infinite. 1 2 3 4 up to infinite. That is why we have started from 1. That's why this one is smallest natural number. This one is smallest natural number. Is it okay? Okay, this is all about natural number. Now after that, after natural number we have whole number. They are what? Whole number. उनको क्यों कहा जाता है होल नंबर, समझिए आप. नेचुरल नंबर में हम कहाँ से शुरुआत करते थे? 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, लेकिन हमने कहीं पर भी ज़ीरो मेंशन नहीं किया. अब मैं इन सारे नंबर्स में ऐड कर देता हूँ ज़ीरो. सो वेन एवर वी विल ऐड ज़ीरो टू द नेचुरल नंबर, समझना, जीरो प्लस ऑल द नेचुरल नंबर अगर ब्लैंक्स में आ जाए, जीरो प्लस ऑल द नेचुरल नंबर, दे आर होल नंबर. Okay, so we have started whole number from 0. That is why 0 is smallest whole number. 0 is smallest whole number. Okay, set of whole number is denoted by W. Set of whole number is denoted by W. Okay, ये सारी चीज़ें बेसिक है. एक एक बार मैं आपको इनको रिवाइज करवा देता हूँ. अब नेचुरल नंबर की बात हो गई, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात हो गई, होल नंबर की बात हो गई. लेट्स कम टू द अनदर नंबर. दे आर आवर फेवरेट इंटीजर्स. विच आर दे? इंटीजर्स. अब देखो, नेचुरल नंबर्स में हमने कह दिया कि नेचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर है. नेचुरल नंबर सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर. whenever we will add 0 to them, they will become whole number. So in this whole number we have 0 plus positive number. अब क्या आ गया? तो हम ये ज़ीरो एंड ये पॉजिटिव नंबर में हम ऐड क्या करेंगे? तो हम ऐड करेंगे नेगेटिव नंबर्स. क्या ऐड करेंगे? नेगेटिव नंबर. तो अब हमारे पास जो ग्रुप होगा उसमें क्या क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ज़ीरो होगा और नेगेटिव नंबर्स होंगे. सो दैट इज़ वाई इन इंटीजर there are positive numbers, zero numbers and negative numbers. So we can say that integers include which numbers? Positive, negative and zero. We also know about the comparison of that also. So what is the set of integer? Please remember that is z. सेट ऑफ इंटीजर इज z. ओके, चलो एक बार फिर से सारे चीज़ों को रिवाइजन कर देते हैं उसका. नेचुरल नंबर, सो सेट इज n. होल नंबर, सेट इज w. इंटीजर, सेट इज z. विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? दैट इज 1. व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर? दैट इज 0. स्मॉलेस्ट इंटीजर के बारे में हम अभी बात नहीं करते. ओके, natural number, they are positive number. Natural numbers are known as positive number. Okay, whole number, they are 0 plus positive. They are 0 plus positive. And integer, they are positive. They are positive numbers plus 0 and they are negative. Clear? So this is story about integers. Okay, let's move forward. Integers. ओके, ऐसे तो हम सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स हो, सारे के सारे नंबर्स, अगर ये नंबर्स को हम कौन सी लाइन पे, अगर कोई लाइन पे हम रिप्रेजेंट करें तो उनको क्या कहते हैं हम?
तो वी आर टेलिंग इट नंबर लाइन। हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो। लेकिन खास हम इंटीजर को मेंशन करेंगे, इंटीजर्स को। तो कैसे ये सारे इंटीजर्स को हम नेचर नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो ये हो गई नंबर लाइन। नंबर लाइन के ठीक बीच में एग्जैक्ट मिडल, तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मिडल में आ जाएगा ज़ीरो। नंबर लाइन के मिडल में क्या होगा, ज़ीरो। देन दिस इज राइट साइड, तो राइट साइड में कौन से नंबर होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर। नंबर लाइन की कौन सी साइड, जीरो की राइट साइड, वहाँ पे हो गए पॉजिटिव नंबर। अब कौन सी साइड आई यहाँ पे, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में कौन से नंबर आ गए, तो नेगेटिव नंबर। ये भी सारी चीज़ हमको पता है, सारे का सारे बेसिक है ये। क्लियर? प्लीज मेक अ नोट एंड राइट इट वेल। नाउ अब देखना है उनकी कंपैरिजन। फटाफट करवा लेता हूँ ये रिवीजन, अभी मैं रेशनल नंबर पे नहीं आया। अब हम करते हैं उनकी कंपैरिजन। तो देखो कंपैरिजन में क्या होगा, जीरो है ना, जीरो वो नेगेटिव नंबर से ग्रेटर है। नेगेटिव के लिए मैं ये साइन करूंगा, याद रखना। नेगेटिव के लिए मैंने अभी लिखा, ऐसे लिखूंगा ये नेगेटिव। क्लियर? तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देन जो ज़ीरो है वो लेस देन है किससे, पॉजिटिव नंबर से। ये खास याद रखिएगा, ज़ीरो ग्रेटर है किससे, साइन चेंज है। देखना जो बीच में लेस देन ग्रेटर देन है उसकी साइन चेंज है। जीरो है वो नेगेटिव नंबर से ग्रेटर है, जीरो है वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर है। सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर से भी लेस है, मतलब स्मॉलर है। नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर्स। ओके, यहाँ तक बात की हमने नेचुरल, होल नंबर एंड इंटीजर। उसके बाद जो सारे नंबर आते हैं उनका नाम है रेशनल नंबर्स, जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है रेशनल नंबर्स। पहली तो बात करते हैं कि रेशनल नंबर के सेट को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्यू, क्योंकि क्वोशंट बोलते हैं हम उनको, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं इसीलिए। तो रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज क्यू आता है, कई बार ब्लैंक्स में आता है, ट्रू फॉल्स में भी आता है। ओके, एन इज फॉर नेचुरल, डब्ल्यू इज फॉर होल, जेड इज फॉर इंटीजर, जेलेन a mathematician, well known mathematician Jelen. Okay, then it is q and q stands for rational number. Now see the second story about rational number. Rational, second point, please mention each and every point. Rational numbers are represented in form of a by b. कैसे फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, a अपॉन b। बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा x अपॉन y, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा p अपॉन q, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। दे आर a और b, x और y, एंड p एंड q। क्लियर? सो a बाई b फॉर्म में लिखा जाता है। अब a बाई b फॉर्म को समझते, a क्या है, ये न्यूमरेटर है, a क्या है, न्यूमरेटर, b क्या है, तो डिनोमिनेटर। तो मतलब क्या हुआ कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं किसको, रेशनल नंबर को, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को। क्लियर? So these are rational number. What is set of rational number? That is q. Okay. Now between two integer, please make a note. Between two integer, if we have two positive, two negative, so between two integer, how many rational numbers are there? So between two integers, there are infinitely many integers. बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन टू इंटीजर्स। देर आर सो मैनी रेशनल नंबर्स। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। और उसमें भी हम थोड़ा आगे देखते हैं कि सपोज मैंने लिख दिया उनको p अपॉन q फॉर्म में। क्लियर? और यहाँ पे कंडीशन लिखी रहती है कि q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q क्या नहीं है, तो q ज़ीरो नहीं है। तो देखो एक छोटी सी बात समझते हैं कि q ज़ीरो नहीं है। तो अगर q ज़ीरो नहीं, क्योंकि q कहाँ पे है, तो q डिनोमिनेटर में। अब ये बात ध्यान में, आप बेसिक में भी देख लो कि ज़ीरो डिवाइड x, योर आंसर इज ज़ीरो, वेयर x इज एनी नंबर। ज़ीरो डिवाइड x, दैट इज ज़ीरो। बट x डिवाइड बाय ज़ीरो, x is any number, 0 divided by x, your answer is 0, but x divided by 0, your answer is not valid, infinite, undefined, right? अनडिफाइंड आंसर मिलेगा आपको, इसका कोई आंसर होता नहीं। एक बार आप कैलकुलेटर में चेक कर लेते हो तो इसकी कोई है ही नहीं, राइट? एक्स डिवाइड बाई जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है, तो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो व्हाट अबाउट पी? तो मैं इधर लिख देता हूँ कि पी बिलोंग्स टू जेड। मैं क्या लिख देता हूँ,
P बिलोंग्स टू Z। अब Q के लिए क्या, बिलोंग्स टू Z में पता चला ना, बिलोंग्स टू मतलब कहाँ से आता है, तो P कहाँ से आता है, तो कहाँ पे रहता है, तो Z में रहता है। Z में कौन होता है, तो Z में पॉजिटिव होते हैं, जीरो होते हैं, और क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना ये P बिलोंग्स टू Z में। अब हमने बोल दिया कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो Q ज़ीरो नहीं है। तो मान लो कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम Q को ज़ीरो नहीं लिखेंगे, तो एक बार मैं लिख देता हूँ सी P अपॉन Q। P है ये पॉजिटिव इंटीजर है, अगर P पॉजिटिव हुआ, Q को तो मैं Q बिलोंग्स टू N ही मान लेता हूँ। चलो अभी Q बिलोंग्स टू N, मतलब Q क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव मिलेगा। पता है ना, प्लस 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 तो पॉजिटिव। तो P अपॉन Q इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। P अपॉन Q इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्लियर, P इज पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव। हर बार हम Q को अभी के लिए, ऐसा है ही नहीं कि मान मत लेना कि ऐसा ही होता है, हम उसको अभी Q बिलोंग्स टू N ले रहे हैं, N मतलब पॉजिटिव नंबर्स में ले रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक P negative and Q positive. In P upon Q form, we will take this P as a negative number, this P as a negative number, and this Q as a positive number. Minus plus minus, see, minus plus minus. So the answer is negative. Then P upon Q is a negative rational number. Negative rational number. Clear? Now the last one, P upon Q. P upon Q. Three condition. Please mention each everything. P we are taking 0 and this is any positive integer. Your answer is 0 because अभी मैंने बोला आपको कि 0 divide x, that is 0, right? So 0 is a rational number. Okay? 0 is a रेशनल नंबर। दैट मीन्स वी कैन से, ये सारी चीज़ें क्यों लिखी मैंने कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड ज़ीरो भी होता है। कैसे मेंशन किया जाता है तो देख लो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, उसके एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे कि 5/7, 7/9, -1/3, ओके, 2/4, सॉरी 4 नहीं लिखूंगा अभी क्योंकि कंसेप्ट बाकी है वो, -1/7, ओके, एंड 0। क्यों 5/7 को रेशनल नंबर बोला, क्योंकि हम उसको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्यों, जब 5/7 लिखेंगे तो P इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड Q इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्लियर, जब 7/9 लिखते हैं तो P इक्वल टू 7 हो जाएगा, Q इक्वल टू 9 होगा। जब हमने -1/3 लिखा तो यहाँ पे P इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड Q इक्वल टू हो जाएगा 3। ऐसे ही आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे 0 को मैं साइड में करता हूँ, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं बोल देता हूँ कि एग्जाम्पल 5 इज अ रेशनल नंबर। 5 इज अ रेशनल नंबर। आप बोलोगे सर नो, 5 इज अ नेचुरल नंबर, 5 इज अ होल नंबर, बट मैं कह रहा हूँ 5 इज अ रेशनल नंबर। क्यों, पहली हमारी रीज़न वैलिड है कि हम 5 को P अपॉन Q फॉर्म में नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या हम इसको लिख पा रहे हैं, तो हम 5 को कुछ ऐसे लिख पाएंगे, 5 नीचे कुछ नहीं है तो हम लिख देते थे 1, तो हो गया ना, P इक्वल टू क्या हुआ 5, Q इक्वल टू क्या हुआ तो 1, हो गया P इक्वल टू 5 अपॉन Q। आप कुछ ऐसे लिखते हो कि अगर मैं 10/2 करूँ तो भी मुझे क्या आंसर मिलेगा 5, P क्या हो गया वहाँ पे 10, Q क्या हो गया 2, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। आगे हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो भी चीज़ सीखनी है हमको कि कब तक प्राइम नंबर्स में लाना है उसको। 5/7, चलो ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं, क्या -7 रेशनल नंबर होगा, तो हाँ होगा। क्यों, -7/1 हम उसको लिख पाते हैं, तो -7/1 हुआ, सो दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, सो -7/1 इज अ रेशनल नंबर बट नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट थियरी। सपोज मान लिया मैंने कि आई हैव 6/12, 6/12, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, तो चलो हमने मान लिया कि P इज इक्वल टू 6 एंड Q इज इक्वल टू 12, ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन सी कैन वी सिंप्लीफाई इट, तो 6/1 एंड 6/2, तो उसका जो रूट रेशनल नंबर था, मेन रेशनल नंबर था, वो कौन सा होगा 1/2, मतलब ये 6/12 है वो कहाँ से आया होगा 1/2 से। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई 1/2 के इक्वेलेंट रेशनल नंबर लिखिए, तो क्या होगा, देखो 1/3 करूँ तो नीचे भी 2/3 होगा, तो क्या हुआ ये 3/6 हुआ। 1/5 दिया गया है हमको,
तो 1 इंटू मैं 4 करता हूँ तो 5 इंटू भी क्या होगा, तो भी 4 होगा, तो क्या हुआ ये 4d/20 हुआ। तो ये सारे हो गए रेशनल नंबर्स। क्लियर हो रहा है ना। सो दीज आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए क्या याद रखोगे आप, उसका सेट होता है, उसको क्यू से डिनोट होता है, उनका फॉर्म होता है वो p/q, जहाँ पे क्यू क्या नहीं होता है, तो क्यू जीरो नहीं लेते हम, बराबर, क्यू को हम जीरो नहीं ले रहे। ओके, और p कहाँ से आ रहा है, तो p बिलोंग्स टू z, z मतलब कौन सा, तो इंटीजर। ये सारी चीज़ें आप रिवीजन कर लीजिए। ये रेशनल नंबर का सिर्फ पार्ट 1 था, ये इंट्रोडक्शन था। सेकंड में हम उनकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, कंपैरिजन देखने वाले हैं, राइट, एंड सो मैनी टॉपिक्स। तो ये जस्ट बेसिक था, आप उसका रिवीजन कर लो और आ जाइए। देन वी विल सी पार्ट 2 वेरी सुन। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद अस। अगले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड please check the notification. Thank you so very much.